Dear class 10th students, yesterday you studied about Project Tiger and what are the conservation methods of flora and fauna. Did you write the answer? What are the measures to conserve flora and fauna? Yes, ma'am. Uh, who would like to read the answer? Conservation method of flora and fauna? Ma'am, can I? Yes. Yes. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 with Hmm. the following measures flora and fauna for Hmm. protection. Center and many state government established national park, wildlife sanctuaries, and biological reserves for protect flora and fauna. Uh, Or and all in a list of protected species was also published, and various projects like Project Tiger, Project Rhino, Project uh, Elephant, Project Insect, and are important. Hunting and poaching animals has been banned, and trade in wildlife has been restricted. Deforestation has been banned. Various afforestation program has been increased. hmm. Disease sensor are animals are undertaken to know our trend growth. Recent trend of their population. ठीक है? Hmm. तो ठीक है? और Adishri, have you written the answer? ये अमृत गौतम का आंसर बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है ना? Adishri, you would like to read the answer from your notebook? Adishri, unmute करो. आदित्य आर्यमान. और इस लेसन के बारे में बता दें तुम लोग को कि ये तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, और ऐसे जो वीकली टेस्ट है उसमें भी आएगा, और फाइनल एग्जाम में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन इसको भी अच्छे से ध्यान से पढ़ो, क्योंकि हम पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं करते हैं, हम अपने बेसिक नॉलेज के लिए करते हैं. ठीक है ना? तुम्हारा नॉलेज बढ़ना चाहिए ना घर में बैठे बैठे. हाँ, लॉकडाउन जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम को ध्यान में देके पढ़ रहे हैं. मैम. हाँ बोलो. हरे राम. मैम, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. जल्दी से फिर से बोलो, आवाज कट गई. मैम, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना बताना है. हाँ, उसके मेजर्स बताने हैं कि कौन कौन से स्टेप हमने इम्प्लीमेंट किया है जिससे फ्लोरा फाउना को प्रोटेक्ट करेंगे. हरे राम, लिखते हो सिंसियरली? ये क्लास में आंसर लिखाया गया था कल, तो इसलिए तुरंत रीडिंग करना चाहिए. अदिश्री को हमने कहा. हरे राम, तुम लिखे हो? कल क्लास में ये लिखाया गया था. जल्दी से एक बार और हम रीडिंग चाहते हैं. कोई एक और बच्चा रीडिंग करो. अभिषेक कुमार. मैम कैन आई? उत्कर्ष नहीं पढ़े थे अभी? अच्छा, अमृत गौतम ने पढ़ा था. और ये अभिषेक, आदित्य आर्यमान, यू आर नॉट रेडी? तो चलो उत्कर्ष, तुम रीडिंग करो. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 with the following measures for the protection of flora and fauna. Point 1. Central and many state governments established national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves for the protection of flora and fauna. सभी बच्चे अपना आंसर मिलाओ, है ना? चलो. Point 2. An all India list of protected species was also published, and various projects like Project Tiger, Project Rhino, Project Elephants, Project Insects are implemented. Point 3. Hunting and poaching of animals has been banned, and trade in wildlife has been restricted. Point 4. Deforestation has been banned, and various
afforestation programs are being encouraged. Point 5. Periodic census of wildlife animals are undertaken to know the trends of their growth. Census. What is the spelling of census? बोलो. SENCER. फिर से बोलो spelling of census. This is the definition of censorship. आवाज नहीं आ रही ना? Ma'am, CENSORS. नहीं, SUS. CENSUS. सेंसस बोलते हैं. सेंसस. CENSUS. सेंसस. करेक्ट कर लो. इसीलिए हमने लिया. ठीक है. डिप्लीशन का स्पेलिंग बोलो. डिप्लीशन. DEPLETION. हाँ ठीक है. तो स्पेलिंग पे ध्यान देना. ठीक है. सबके पास किताब है. स्पेलिंग बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए. अच्छा, ये पैराग्राफ हम लोग अभी करते हैं. कल इसको बहुत फास्टली कर लिए थे, तो आज को इसको रिपीट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे. आज का मेन पोर्शन क्या होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये रहेगा आज का मेन टॉपिक. अब यहाँ देख लो कि बायोडाइवर्सिटी को सेव करना मेन एम है. इस पैराग्राफ में देखो, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी rather than on a few of its components. देखो, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किसी खास एनिमल का को प्रोटेक्ट किया जाता है. तभी ना उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ टाइगर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राइनो. तो उसमें क्या होता है कि किसी खास एनिमल के बना होता है. लेकिन अभी का क्या कंसेप्ट है कि हमको कोई एक एनिमल को लेके नहीं चलना है. वी हैव टू फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि एक फॉरेस्ट के अंदर बायोडाइवर्सिटी की बहुत जरूरत होती है. हर्बीवोरस एनिमल भी उतना ही जरूरी है, कार्निवोरस भी उतना ही जरूरी है. कार्निवोरस. हाँ, सारे प्लांट लाइफ उतने ही जरूरी है. इंसेक्ट और मॉथ और बटरफ्लाई सब जरूरी है ना. तो क्योंकि हर एक का इकोसिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. तुम उसको कई सारे एग्जाम्पल से समझते होगे कि एक फ्रॉग है तो उसका क्या रोल है, एक स्नेक है तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम में, टाइगर है तो क्यों इम्पोर्टेंट है, एक गोट का क्या इम्पोर्टेंस है. साइकिल है उसका. हाँ, क्योंकि वो फूड चेन और फूड वेब उन्हीं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है, एकदम प्लांट लाइफ से लेकर के सारे हर्बीवोर, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉरेस्ट, ऑमनिवोर, सबके ऊपर ये फूड चेन डिपेंड करता है. इसीलिए अभी का कंसेप्ट क्या है कि टू प्रोटेक्ट द होल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नॉट ओनली वन टाइप ऑफ स्पीसी. There is now a more intensive search for different conservation measures. Increasingly, even insects are beginning to find a place in conservation planning. Conservation planning में insects को भी उतना ही importance दिया गया है. अब ये insects में क्या क्या है, तो तरह तरह के butterfly, moth, beetles, dragonfly, ये सब है. यहाँ से देखो, in the notification under Wildlife Act 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. ये एक्ट याद रखना, Wildlife Act 1980 to 1986, 1980 and 1986. इसके अंदर क्या दिया गया था स्ट्रेस, किस बार किस ऑर्गेनिज्म के इस पे प्रोटेक्शन पे. हाँ, तो इन सारे इंसेक्ट पर, जिसमें कि बटरफ्लाई, मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगनफ्लाई सब शामिल हैं. In 1991, for the first time, plants were also added in the list, starting with 6 species. ठीक है ना. About 1991 से प्लांट्स के ऊपर भी ये प्रोटेक्शन का एक्ट लगाया गया. ये उनको सारे प्लांट्स का भी कंजर्वेशन उतना ही इम्पोर्टेंस है. पहले प्लांट्स के ऊपर ध्यान नहीं गया था. अब आ जाइए यहाँ पर इस पेज में.
ये सब न्यूज़पेपर का कटिंग है। बर्ड्स डेथ ब्लेम ऑन डर्टी यमुना, ठीक है ना। एक बार यमुना बहुत इंटॉक्सिकेटेड हो गया था और उसी से बर्ड्स बहुत मरे थे। अभी भी उधर चंबल रिवर से इस तरह के डर्टी वाटर से बहुत सारे एनिमल्स का डेथ हुआ था। इसी तरह तरह न्यूज़पेपर, हमेशा अभी के न्यूज़पेपर में भी देखोगे तो प्लांट्स एनिमल्स से बहुत सारे न्यूज़ इस तरह के निकलते रहते हैं। हाँ, अब जो ये तुम देख रहे हो, देखो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। Before this, in class 9th also, you have studied about classification of forest, but that was the geographical classification of forest. ठीक है ना, याद है ना तुमको क्या क्या पढ़े थे उसमें? Tropical evergreen forest, Yes, ma'am. was forest, tropical thorn Tropical deciduous forest. Forest, mountain forest, mangrove forest, and ठीक है ना, डेजर्ट फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, ये सब पढ़े थे। तो वो था क्लाइमेट के बेसिस पे, लैंड के बेसिस पे, मतलब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन था। अभी 10th में क्या पढ़ना है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन किया गया है कि फॉरेस्ट का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो, फॉरेस्ट को किस तरह से हम डिवाइड करें, उसका प्रोटेक्शन किस तरह से करें। तो यहाँ से देखो, even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. In India, much of its forests and wildlife resources either owned or managed by government through the forest department or other government departments. ठीक है ना, तो फॉरेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बने हुए हैं। These are classified under following categories. तो इसका एक क्वेश्चन लिखो तो सबसे पहले, क्लासिफाई फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ज्योग्राफी कॉपी लेके बैठे हो सभी, नोट कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखो। क्लासिफाई फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर लिखो। आर यू रेडी टू राइट? लिख रहे हो सभी? yes, ma'am. Yes, हाँ। ma'am. लिखने के लिए इंटरेस्टेड हो ना कि सिर्फ पढ़ा दें? बोलो। है मैम, हाँ, तो लिख के लिए। लिखो लिखो, लिखने से ना वो तुम्हारे पास रहेगा, याद रहेगा, ठीक है ना। तो लिखो, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, the central and state government through the Department of Forest have classified forests to manage, control and regulate them, to manage, control and regulate them in better manner. Divyanshu, read what have you written, repeat. दिव्यांशु अनम्यूट करो और आंसर बताओ। मैम क्या नाम? हाँ, दीक्षा, हर्ष, तो सब नहीं लिखते हो सभी? यस मैम। किसका लिखना कंप्लीट हो गया, अपना नाम बताओ। मैम मैम और अमृत मैम।
अमृत और उत्कर्ष का हो गया, और भी बताओ। मैम दिव्या, हर्ष। हर्ष, हर्ष रीडिंग करो। Okay, ma'am. Ma'am, the central and state government through the Department of Forest have classified forests to manage, control and regulate them in better manner. ईशानी आज प्रेजेंट है ना, तो तुम लिख चुकी, बताओ तो, लिखिए तो पढ़ो एक बार। मुकुल अनम्यूट करो और पढ़ो। हर्ष कुमार एक बार रिपीट कर दो। कौन रिपीट करेगा, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट हो रहा है। And the central करता and हूँ। state government through the हाँ। Department of Forest have classified forests to manage, control and regulate them in better manner. हाँ ठीक है, शौर्य समृद्ध सब लिख रहे हो ना, अच्छे से बैठो, एकदम टेबल चेयर लगा करके और कॉपी पेन के साथ, बुक के साथ, बेड पे मत बैठना। लिखने के लिए तैयार हो, अच्छे से स्मार्टली पढ़ो उसको, ठीक है। तो लिखो नंबर 1 रिजर्व्ड फॉरेस्ट, पहला लिखो रिजर्व्ड फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द total forest of India, more than half of the total forest of India has been declared reserved forest, has been declared reserved forest. ब्रैकेट में लिखो about 55%, full stop. टोटल फॉरेस्ट का 55% क्या है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। मैम रिपीट कीजिए ना। More than half of the total forest of India has been declared as reserved forest. और वहीं पे ब्रैकेट में पहले लिख लो 55%, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। The main purpose is the protection and conservation of forest and wildlife. The main purpose is the conservation of forest and wildlife resources. मैम रिपीट कर दीजिए मैम। The main purpose is the conservation of forest and wildlife resources. तो रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में इतना जान लो कि कंट्री का करीब 55% फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व के कैटेगरी में आता है। और रिजर्व का मतलब ही है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल टोटली इसके प्रोटेक्शन में है। कोई भी इसके अंदर कोई भी इलीगल हंटिंग या कटिंग ऑफ वुड ये सब कुछ भी नहीं काम कर सकता है, ठीक है ना। वो पनिशमेंट मिलता है, सीवियर पनिशमेंट, जेल और फाइन सब कुछ है। तो इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ना पूरी तरह से फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, ठीक है ना। और जो अगला टाइप है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसमें भी है कि फॉरेस्ट को एकदम प्रोटेक्ट करके रखा गया है, लेकिन फिर भी परमिशन से इसमें कुछ फॉरेस्ट एक्टिविटी जिसको फॉरेस्ट्री कहते हैं लोग कर सकते हैं, है ना, परमिशन के साथ। तो दूसरा लिखो नंबर 2 protected forest. Almost 1/3 of the total forest area is protected forest. The main purpose of this
forest area is, the main purpose of this forest area is to save them from any further depletion. From any further depletion. कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस होने से फॉरेस्ट खराब हो रहे थे, तो उन एरियाज को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया है कि आगे उसका और डिप्लीशन ना हो। ठीक है ना? मान्या, रीडिंग करो तो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रितेश कुमार, रितिका, जो भी लिखा है जल्दी से रिपीट करो। समृद्ध। Protected forest, almost 1/3 of the total forest area. The main purpose of this forest areas is to save from any further depletion. हाँ, डिप्लीशन, एनी फर्दर डिप्लीशन। हाँ, ठीक है, ठीक है। अमृत गौतम ठीक लिखा है। अंजिल बाद में ज्वाइन किए हो। अब लिखो नंबर 3। unclassed forest। These are other forests and wastelands. These are other forests and wastelands belonging to both government and these are other forests and wastelands belonging to both government and private individuals and communities. इसको अनक्लास्ड फॉरेस्ट में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी का भी हो सकता है ना? कोई कुछ इसके पार्ट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज अगर इसके ओनर हैं तो इसको अनक्लास्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये ज्यादातर ट्राइबल एरियाज में है, ठीक है ना? और भी कई जगह पे हैं, लेकिन इसमें ट्राइबल एरिया ज्यादा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। अब इस पैराग्राफ में आ जाओ, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों मिला करके उसको परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट अलग हो गया और रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिला करके हम परमानेंट फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिजर्व फॉरेस्ट में से कुछ सामान नहीं लेते हैं। यहाँ पे लंबरिंग बहुत होती है। लंबरिंग मतलब कटिंग ऑफ वुड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू लॉग्स, ट्रांसपोर्टिंग देम टू द इंडस्ट्री। ये सारा काम मिला करके क्या कहते हैं? लंबरिंग कहते हैं। तो लंबरिंग तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि वुड का तो बहुत यूज है ना। रेलवे इंडस्ट्री से लेके हर जगह, फर्नीचर इंडस्ट्री, सब जगह वो वुड चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के परमिशन से उसकी देखरेख में होता है कि कौन से फॉरेस्ट की किस एरिया में लंबरिंग करनी है, ठीक है ना? क्योंकि क्या करते हैं, फॉरेस्ट वुड भी लेते हैं और साइक्लिक मैनर में फॉरेस्ट का ग्रोथ भी करते रहते हैं कि एक तरफ से दूसरा फॉरेस्ट तैयार भी करते रहते हैं। अगर 5-10 ट्रीज का अगर हमने लंबरिंग किया तो उससे दुगना उसके प्लांटेशन करके पहले से तैयार रखते हैं ट्रीज को, ठीक है ना? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, लकड़ी जिससे फर्नीचर बनती है या रेलवे में स्लीपर्स ये सब बनते हैं, वो उसको टिम्बर कहते हैं। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस।
अब देखो स्टेट के एग्जांपल देखो, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, constituting 75% of its total forest area. Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Uttaranchal, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra have large percentages of reserved forest of its total forest area. अब देखो अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि which states have large area under reserved forest, ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में आगे कौन कौन से स्टेट हैं? जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब रिजर्व फॉरेस्ट में आगे हैं। और फिर दूसरा कैटेगरी देखो जिसमें कि कौन कौन से स्टेट हैं? एग्रीकल्चर वाले स्टेट है मेनली, देखो बिहार, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। इसमें ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो किस कैटेगरी में आता है? तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज मोर इन स्टेट्स लाइक बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, है ना। तो तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो तो दोनों के लिए अलग अलग। नेम द स्टेट वेयर Name the state where the percentage of permanent forest is highest. Name the state where the percentage of permanent forest is highest. लिख लिए, इसका आंसर लिख लेना। कौन सा स्टेट होगा बोलो मुकुल? तरुण, उत्कर्ष बोलो कौन से स्टेट में ये हाईएस्ट परमानेंट फॉरेस्ट है? मध्य प्रदेश। हम जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, नहीं अभी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश। लिखना। देखो परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। और परमानेंट फॉरेस्ट का क्या मतलब हुआ कि तुम ये दोनों को मिला दो, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिला करके क्या करते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट। तो परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। अब इन दोनों का कैटेगरी भी हम लिखवा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में। लिखो सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेम द स्टेट्स वेयर देयर इज मोर रिजर्व्ड फॉरेस्ट। नेम द स्टेट्स वेयर देयर इज मोर रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो ये अंडरलाइन कर लो, रिजर्व्ड फॉरेस्ट ज्यादा है जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में। फिर अगला एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखो। नेम द स्टेट्स वेयर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर मोर। Name the states where protected forests are more. तो उसमें क्या लिखोगे? इसको अंडरलाइन कर लो, बिहार, हरियाणा, पंजाब। तो ये तीनों एग्रीकल्चरल स्टेट है, यहाँ फॉरेस्ट कम है और जो है भी वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है। मतलब कि फॉरेस्ट का बहुत डिप्लीशन हो रहा था तेजी से, उसको बचाने के लिए उसको प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा गया। फिर हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान ये भी है। अब लास्ट क्वेश्चन लिखो। Which regions have unclassed forests? Which regions have unclassed forest? तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, parts of Gujarat have very high percentage of their forest in unclassed category, which are managed by local community. Last answer में क्या लिखोगे? North eastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest.
मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसी को अभी रिपीट करोगे। 2 मिनट 3 मिनट बचा है, नहीं 2 ही मिनट बचा है। 1 मिनट पहले स्टार्ट किए थे तो 1 मिनट पहले ऑफ भी होता है। हाँ, इसको रीडिंग करो। तो अभी क्या लिखे, जो 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अभी लिखा है ना, उसको रीडिंग करो। Name the state where the more reserve forest. जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश. Name the state where protected forest more. बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल. नहीं, और Which region? पंजाब भी लिखो। Yes, पंजाब. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, इतने हो गए। ठीक है। Which region have Unclassed. forest? ठीक है। Northeast eastern state part of Gujarat have very high percentage and unclassed forest हाँ, ठीक है। managed by the local committees. ठीक है, बढ़िया। तो अब अगले क्लास में ना हम लोग वो करेंगे, ये पोर्शन करेंगे, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन करेंगे। देखो ये टॉपिक है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन मीन्स हाउ द लोकल पीपल, हाउ द लोकल कम्युनिटी मेंबर्स हेल्प इन कंजर्विंग और प्रोटेक्टिंग देयर फॉरेस्ट। कल के क्लास में यही करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोकल पीपल किस तरह से अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और लोकल पीपल को ही करना भी पड़ेगा, क्योंकि सारा काम गवर्नमेंट थोड़ी देख सकती है। वहाँ के लोकल पीपल को ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, है ना। तो आज जो क्वेश्चन लिखे वो था क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट लिखे। ठीक है, और बाकी इस लास्ट पैराग्राफ से छोटे छोटे आंसर लिखे। ठीक है ना। तो अब आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। तुम बोलो, और कुछ पूछना है? फेयर कॉपी बनाते चलो, रेडी रखो एकदम। क्लास में ही तो लिखवा देते हैं सारा, तो कॉपी रेडी हो जाएगी।